Do you know what is the diameter of Earth, the entire Earth? It's somewhere between 12,742 kilometers, I think, but it's more than 12,000 kilometers. And you know, हम लोग 2022 में हम लोगों ने कितना ट्रैवल किया? More than 11,000 kilometers. थोड़ा सा रह गए हम. अदरवाइज हम लोग अर्थ का एक कंप्लीट चक्कर लगा सकते थे अगर देखा जाए तो. बट या दैट इज़ द डिस्टेंस वी ट्रैवल्ड इन 2022. एंड हम लोग ऐसा फालतूगिरी में ट्रैवल नहीं कर रहे थे, नहीं, ऑफ कोर्स नॉट. हम लोग ट्रैवल कर रहे थे टू इन्वेस्टिगेट, टू होस्ट आर टूर्स, इन्वेस्टिगेट दिस प्लेसेस जिसका वीडियोज़ आपने अपने चैनल में देखा. And a lot of other things were also happening side by side. So yeah, 2022 was really great. It took us to some of the most haunted locations of the country. हमने investigate किया किस के videos गए, कुछ के नहीं गए क्योंकि उतना कुछ अच्छा नहीं था, तो नहीं गए, और जिनके अच्छे थे उनके हमने डाल दिए थे. But out of in a whole, I think हम लोगों ने इस साल total 25 videos डाले थे. कुछ investigations हैं, कुछ vlogs हैं. And of course 2023 में aim is to post more things, but ये video is about us reacting our top 5 favorite moments from 2022. हमने काफ़ी अच्छे investigations किए, काफ़ी अच्छे जगह गए हम, and हमने सोचा क्यों ना हम अपनी एक reaction video बनाएं where we are letting you guys know कि हमारी favorite moment कौन सी है. Of course you can let us know कि आपकी favorite moment कौन सी है in the comment section below. But let's start with the video. I think this will be the first, one of my favorite ones, जो हमने माथेरान में किया था. माथेरान, I think it's a place जो कि हमेशा favorite रहेगा, and this part is especially it's one of my favorites. You know, the first feeling that I got when I saw those windows and the patras closed on every window, and I love the background something music. very dark that's lurking inside. And कोई एक विंडो से जब मैंने पीप करने की कोशिश करी, सो आई एक्चुअली फेल्ट अ वेरी, आई डोंट नो इफ आई शुड यूज दिस वर्ड, बट डिस्गस्टिंग प्रेजेंस. इट वाज लाइक बहुत ही ज़्यादा. आई मीन आई स्टिल रिमेंबर दैट फेस जो मैंने देखा था वहाँ पे. एंड आई मीन दिस प्लेस वाज सो क्रीपी कि इट डिड ब्रिंग यू नो दैट fear in me जब मैंने especially वो चेहरा देखा. Yes, that part, and why it is one of my favorites also is because जब you and Savio भैया, you both the psychics of the team, you guys were giving the psychic readings. That was one of my favorite moment because right after you said कि मुझे ऐसा एक witchy सा face दिखा right on that window part while you were trying to see कि अंदर क्या है. At the same time Savio भैया says कि सब you know, there's this thing that is inside this property जो कि हमें बहुत ही गंदी evil eye से देख रही है, and it's just trying to lure us inside. Correct. I don't know if we should go inside or not. कुछ चीजें तो हमने कट कर दी थी, of course. मेरे ख्याल से ये पहली बार था जहाँ पर I saw कि Savio झिझक रहा है अंदर जाने से. Correct. That's extremely unlike Savio, but he and I think he did a wise thing where he waited for all of us and he did not step inside alone. And that was nice actually because he kind of realized के उनकी भी कुछ responsibility बनती है because he's a senior member and he's a great psychic and everything, great investigator and is very responsible on the field. And he also understood कि नहीं, अगर हम ये कर रहे हैं तो हम साथ मिलके कर रहे हैं, otherwise we are not doing it. So he, you know, उन्होंने बताया, and the readings were quite scary, and it's one of my favorite places. अभी भी जब हम लोग बीच में गए थे, we also again went to see that place. Do you remember that was one location जहाँ पे investigation के पहले सबके phones बजे थे? Yeah, सबके फैमिली के यहाँ से कॉल आया था, which was weird. That was again something unusual and weird because normally our families don't disturb us when we are on investigations. कोई कॉल नहीं करता है, कुछ नहीं करता है. एक जन का कॉल आए fine, but literally सबके phones just before we are entering the property. Yeah, सबके phones बजे थे, and it was quite some place actually. I wouldn't mind investigating it again. बट जो कुछ भी था, बहुत कुछ चीज़ें अनफोल्ड हुई. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, गो वॉच दैट थिंग. फुल इन्वेस्टिगेशन वीडियो हमने डाला है, आई थिंक लिंक हम कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हो. इट्स वन ऑफ आवर फेवरेट मोमेंट्स फ्रॉम 2022. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन. The next one I think will be the Roha Fort.
जो कच्छ में है. वी वेंट टू कच्छ अर्ली दिस 2022 एंड मैं दिस ईयर बोलने वाला था, मैं अभी भी 2022 में हूँ. बट वी वेंट देयर एंड कच्छ इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल. बहुत सुंदर जगह है. बहुत मज़ा आया घूम के भी. बट यू नो वी गो बाय दिस बिलीव के जितनी ही अच्छी एक जगह है उतनी ही ख़तरनाक उसकी हिस्ट्रीज़ हैं, उसकी कहानियाँ हैं, उनके हॉन्टिंग्स हैं. एंड कच्छ जस्ट प्रूव दैट, यू नो, इट्स अ लिविंग प्रूफ कि जो हम ये बोलते हैं काफ़ी सही है. क्योंकि amidst of that beautiful you know salt desert and जो कुछ भी है वहाँ पे in Kutch and around Kutch, जो चीज़ें रोहा फोर्ट में हुई हैं, जो चीज़ें वहाँ पे अनफोल्ड हुई हैं, the you know the what do you call that, the earthquakes, the destructions and earthquake के पहले भी जो चीज़ें हुई हैं are very very dreadful, painful and very sad. एंड जब हम लोग वहाँ, हमको जब मौका मिला, जब हम लोग को स्टोरीज मिली कि वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन करना है, वी टुक दैट चांस. आई थिंक हम कैसे भी करके हमने बुकिंग किया, ट्रेन वेन का बुक किया, कैसे ट्रेन का बुकिंग, आई मीन दैट वी वाज लिटरली, हमारी ट्रेन मिस हो रही थी. यार भाग देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी व्हेनेवर वी ट्रैवल. भले वो प्लेन में हो जाए, भले वो ट्रेन में हो जाए, कुछ ना कुछ होता है. अब छोटी सी अगर ब्रीफ में बताऊं तो आई डोंट रिमेंबर द स्टेशन नेम आल्सो, बट बॉम्बे से ही था एक पर्टिकुलर स्टेशन से. ऑफ कोर्स बॉम्बे में बहुत सारे बॉम्बे सेंट्रल था या दादर था, दादर था शायद. दादर के 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, बोथ द प्लेटफॉर्म्स हैव द सेम नंबर, प्लेटफॉर्म 1. लेकिन हमको ये आइडिया नहीं था कि एक प्लेटफॉर्म से सिर्फ लोकल जाती है, दूसरे प्लेटफॉर्म से सिर्फ डिस्टेंस ट्रेन जाती है. मुझे आइडिया था बिकॉज बीइंग, आई मीन ट्रैवल्ड इन लोकल्स, मुझे आइडिया था. बट बिकॉज वहाँ पर जो वो जेंटलमैन थे जिनसे बात हुई थी, ही वाज लाइक सो श्योर कि यहीं से आएगी. करेक्ट. सो वी वर लाइक कि ठीक है, शायद कुछ चेंजेस हुए होंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया ट्रेन से नहीं ट्रैवल किया, सो शायद यहाँ से आएगी. एंड देन इट वाज थैंक्स टू दिस वन गाय जो कि वहाँ पे घूम रहा था. एंड ही सेड कि कहाँ जाना है आपको. हमने कहा अरे कच्छ जाना है. तो बोलता है अरे ट्रेन तो आपकी छूट रही है वहाँ से. ही वाज लाइक चांस ही नहीं है आपको ट्रेन मिलने वाली है, आप कितना भी भाग लो. एंड हम भागे लिटरली. जिनको पता है, जो बॉम्बे से हैं, जिनको पता है कि एक दादर का वो स्टेशन से दूसरे जहाँ से डिस्टेंस ट्रेन जाते हैं, अगर वहाँ पे जाओगे तो ये पूरा ही कंप्लीट प्लेटफॉर्म के थ्रूज नहीं है. आपको प्लेटफॉर्म से निकल के एक रोड में जाके फिर रोड एक कनेक्ट करेगा प्लेटफॉर्म को, वहाँ से फिर अपनी बॉगी ढूंढनी है. इट वाज क्वाइट सम एडवेंचर. नहीं दादर था. हम जाके पहुंचे. एंड देन व्हेन वी वर इन्वेस्टिगेटिंग, आई थिंक पार्ट 3, द नेम इज द स्पिरिट्स, यू नो, पार्ट 3 ऑफ द रेजेंटफुल फोर्ट्रेस. एंड वहाँ पे जब हम जा रहे थे तो हमने इन्वेस्टिगेशन चालू किया. शाम हो गई एंड ऑफकोर्स हमने देखा था कि वहाँ पे लेपर्ड साइटिंग्स का बोर्ड लगा हुआ है. बट हमने सोचा कि यार अभी जस्ट शाम हुई है, इतनी रात भी नहीं हुई थी. कुछ लोग तो अभी भी थे जो गाना वाना बजा रहे थे पीछे. हमने सोचा थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करके निकल जाएंगे. लेकिन जैसे हमने इन्वेस्टिगेशन चालू किया, बहुत कुछ तो हुआ जो कि आप वीडियो में देख लेना, लिंक कर देंगे हम लोग. बट आई थिंक एंड ऑफ पार्ट 2 एंड स्टार्टिंग ऑफ पार्ट 3 में आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ भूत से अभी डर नहीं था. डर एज इन खतरा नहीं था, क्योंकि बहुत कुछ हो रही थी वहाँ पे. अभी हमको किसी और का भी ध्यान रखना था जो कि जिंदा था, जो 4 पैरों पे था एंड जो कि कभी भी हमारे ऊपर कूद सकता था हमको अटैक करने के लिए. वी वर टॉकिंग अबाउट अ लेपर्ड. एंड क्योंकि क्या हुआ कि जब हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो हम लोग इतने उसके मौज में रहते हैं कि हमको समझ ही नहीं होता है आजू बाजू में क्या है. बट थैंक्स टू द एबिलिटीज़ ऑफ सैवियो एंड अमित जो कि हमारे साथ थे तब इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, कि उनको 2 ग्लोइंग आइज दिखी. एंड मुझे तो दिख नहीं रहा है. मैंने कहा यार कहाँ पे है. एंड पूजा को भी नहीं, आई थिंक तुमको भी नहीं दिख रहा था, किसी को भी नहीं दिख रहा था. बट दीज 2 जेंटलमैन दे जस्ट सॉ के कुछ तो ग्लो कर रहा है वहाँ पे. पहले तो हमको लगा यार कोई तो स्पिरिट है. सो वी वर लाइक अच्छा ठीक है, कुछ तो मैनिफेस्टेशन हो रहा है. बट जब वो ट्रैवल किया एंड अंधेरा है, इतना अंधेरा है कि हमको एक दूसरे की शक्लें भी नहीं दिख रही हैं. कि वो जब आंख जब ग्लो करते करते एक कॉर्नर में घुसा, तब हमको रियलाइज हुआ कि यार ये कुछ तो सीरियस हो सकता है. तो अभी चेक तो करना पड़ेगा. तो चेक करने के लिए क्या होता है, दिस इज़ द फनी पार्ट एक्चुअली, जो कि हम कैप्चर नहीं कर पाए एंड कैमरा में दिखा भी नहीं. तो हम तीनों खड़े हैं, मैं, शिवा, पूजा खड़े हैं, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं. सैवियो और अमित डिसाइड करते हैं कि हम ना जाके चेक करके आते हैं. तो हमने उनको देखा कि ये चल के जा रहे हैं करके. हाँ, एंड आई थिंक दैट वाज, I mean, it creeped me out, it freaked me out when I saw them coming back. हाँ, that's what I'm saying, you know, कि हमने उनको देखा कि जब हम जा रहे हैं कि वो लोग, अच्छा ये लोग चल के गए, तो अब हम लोग ऐसे टर्न करके फिर से इन्वेस्टिगेशन चालू कर रहे हैं. फिर 5 मिनट बाद फिर से मैं टर्न करके देखता हूँ हम लोग,
तो हम लोग तो यू नो वी हैव अ हुडी जिसके पीछे घोस्ट एनकाउंटर्स लिखा है, जो कि साइबो भैया पहने थे, एंड अमित वाज आल्सो देयर विथ हिम। तो दोनों जब चल के गए थे तो ठीक था, अब जब वापस आ रहे हमको उनकी शक्लें नहीं दिख रही हैं। दोनों के पैर उल्टे पड़ रहे हैं, दोनों के सर उल्टे दिख रहे हैं, एंड कुछ समझ में ही नहीं आया, क्योंकि हम लोग अभी वैसे भी मूड में थे कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एंड ऑलरेडी वी वर गेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स वहाँ पे स्पिरिट वाइज ऑल्सो। फिर जब हमने उनको देखा कि ये क्या चल रहा है समझ में नहीं आया, आई थिंक फॉर कपल ऑफ मिनट्स हमको भी लगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे, व्हाट इज हैपनिंग। नहीं, मैं ऑनेस्टली डर गई थी। मेरे को नहीं समझ में आया बिकॉज माई माइंड टुक फ्यू मिनट्स टू एस्टैब्लिश के चल के आ रहा है, बट विद इन 2 मिनट्स ऐसा कि अच्छा, क्योंकि इन लोगों ने कुछ तो देखा है, एंड बिकॉज दे कैन नॉट टर्न देयर बैक टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर एनिमल, इसलिए वो हमारे तरफ पीट करके चल के आ रहे हैं। लेकिन अभी चल के भी कैसे आ रहे हैं कि दोनों को पैर ऐसे पड़ रहे हैं जैसे परेड कर रहे हो दोनों। वही तो आई मीन इनमें synchronicity में चल रहा था। द रीजन वाज फाइन, बट दैट विजुअल वेयर इट इज डार्क एंड इनके पैर उल्टे दिख रहे हैं, चेहरा उल्टा दिख रहा है, मुझे वेरी ऑनेस्टली फॉर अ सेकंड लगा ये पोजेस तो नहीं होगा। कुछ तो सीन हुआ था, क्योंकि हमको ऐसा घोस्ट एनकाउंटर्स का जो हुडी ऐसे दिख रहा है कि वो करीब आ रहा है, लेकिन सावियो भैया का शक्ल नहीं दिख रहा है। सो समथिंग वियर्ड वाज हैपनिंग, बट जो भी है दैट प्लेस वेंट ऑन रियली गुड। आप आगे का वीडियो देख सकते हो, विल अगेन लिंक इट। लेट्स मूव ऑन टू द यू नो थर्ड वीडियो। आई थिंक ये रहेगा फॉर श्योर हमारा पहला टूर। आई लव दिस म्यूजिक अगेन। तो पहली बार कुछ ऐसा करो इंडिया में, वो भी एंड इट्स अ सोल्ड आउट इवेंट। आई थिंक वो जो सेटिस्फैक्शन था, इट was I love this music, very honest. एक साल हो जाएगा। मैं एग्जैक्टली वही बोल रही थी, दिस फील्स लाइक येस्टरडे एंड एक साल हो जाएगा। मार्च में गए थे हम लोग। वी होस्टेड आवर फर्स्ट टूर्स कॉल्ड द घोस्ट एनकाउंटर्स टूर्स। पहली बार हमने किया, एंड इंडिया में कोई भी नहीं करता है, अभी भी कोई नहीं करता है, 1 साल बाद भी सिर्फ हम ही करते हैं, एंड इट वाज सच अ हिट, पीपल लव्ड इट। हम थ्री किंग्स चर्च गए, हम अपने फेमस लोकेशंस गए जहाँ पे हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया था, पीपल लव्ड इट। कुछ लोगों ने तो अपना फियर भी ओवरकम किया, फियर ऑफ द पैरानॉर्मल, फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ अननोन, वो सब उन लोगों ने ओवरकम किया, क्योंकि सिर्फ हम लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं करा रहे थे वहाँ पे। यू ऑल्सो टुक मेडिटेशन सेशंस, सावियो ऑल्सो टॉट के कैसे क्या मैनिफेस्टेशन होता है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, साइकिक्स कैसे क्या काम करते हैं, मैंने इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है वो बताया, एंड इट वाज अ वेरी वेरी fun event actually, you know, like calling a paranormal tour fun event has to be मतलब वो event इतना interesting होना चाहिए कि आप हम उसको fun category में डालें and not in the paranormal category. So I think it was the perfect, not just this, यहाँ से तो शुरुआत हुई where we were spreading light, जहाँ पर हम लोगों को facts दे रहे थे paranormal के, उनका डर भगाने की कोशिश कर रहे थे, and then we took them to you know a location, so it was a perfect combination of knowledge and adventure at the same time. And yes, tours अभी भी हो रहे हैं, you can check the description, वहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा कि Ghost Encounters Tours और scareevents.com/get tours करके जो है, वहाँ पे हम मार्च में अभी कुछ करने का सोच रहे हैं, उसके बाद भी बहुत सारी जगह पे होने वाली हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन डू जॉइन अस। एंड अगर आपको आइडिया चाहिए कि क्या होता है, देन अगेन घोस्ट एनकाउंटर्स टूर्स गोवा का जो लिंक रहेगा, जो वीडियो का लिंक रहेगा, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। प्लीज़ डू वॉच दैट एंड विल गेट एन आइडिया। 3 वीडियो कर लिया हमने शायद, चौथा तो यही रहेगा अभी रिसेंटली जिन लोगों ने देखा। Oh God, this one. Yeah, the devil himself, Part 3 of the investigation at this haunted church, जो अभी खत्म हुआ। लास्ट वीकेंड ही वो सीरीज खत्म हुई। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। जिसने देखा है ये, और स्पेशली जिसने लास्ट एपिसोड देखा है, ये लास्ट एपिसोड नहीं है, इसका पहले वाला है, पार्ट 3 है। नहीं, मैं बता रही हूँ कि जिसने लास्ट एपिसोड देखा है वो समझ जाएगा कि मैंने ऐसा रिस्पॉन्ड क्यों किया। इट वाज अब तक it was damn dark. And part 3 is why my favorite is because especially this moment where you start saying, is the church connected to the hospital जो इसके पीछे है? They're playing some instrument. This part is my favorite. That makes any sense. It's a church, right? So it's a church, so yes.
I heard tabla. Possible. I heard guitar. सो अभी चीज़ क्या हो रही थी, जिन लोगों ने नहीं देखा मैं बता देता हूँ. हमने स्पिरिट्स को अर्ज किया कि भाई साहब कुछ तो आवाज़ निकाल के दिखाओ, क्योंकि एस्टेस से बहुत अच्छी कम्युनिकेशन हो रही थी, पूजा बहुत अच्छे अच्छे रिप्लाईज दे रही थी, हमारे जो साइकिक रीडिंग्स थे वो हम कंफर्म कर रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था इसके पहले के 2 एपिसोड में. जब तीसरी एपिसोड में जब हमने कुछ आवाज़ करने के लिए रिक्वेस्ट किया, अर्ज किया, तो आवाज़ें आ तो रही थी लेकिन हमें नहीं आ रही थी, पूजा को सुनाई दे रहा था. एंड ऑब्वियसली लाइक मुझे कुछ पता नहीं था ये क्या कर रहे हैं, ट्रिगर Correct. कर रहे हैं, क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इसलिए आई वाज आल्सो अ लिटिल लॉस्ट बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट टाइम एवर, मैंने इतनी बार एस्टेस किया है बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम एवर दैट आई वाज हियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. हमने क्या डिडक्ट किया था वहाँ पे कि अभी मोस्ट पॉसिबल रीज़न ये हो सकता है कि जो आवाज़ें हम उनको करने बोल रहे हैं वो करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कोई दूसरे डायमेंशन में हो रहा है, जो डायमेंशन में नॉर्मल ह्यूमन ईयर्स को सुनाई नहीं दे रहा है. बट जो स्पिरिट बॉक्स है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उधर मैनिफेस्ट हो रहा है, जिसके वजह से पूजा को सुनाई दे रहा था. बट इट वॉज अ वेरी फन मोमेंट अगेन फॉर मी पर्सनली, बिकॉज आई लाइक व्हाट द फक क्या चल रहा है यहाँ पे, लाइक यू नो लाइक हम कुछ पूछ रहे हैं, आप कुछ कर रहे हो, बट ऑफकोर्स द प्लेस वॉज अ वेरी डिफरेंट वाइब. बट ये जो मोमेंट हुआ इससे ये भी पता चल रहा था कि बेचारे कोशिश तो कर रहे थे लेकिन उनसे हुआ नहीं. बट फ्यू थिंग्स जो कि इसमें सुनाई नहीं दिया होगा नाउ, यू नो आई ऑलवेज रिकमेंड कि अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज़ डू वॉच इट यूजिंग अ हेडफोन और एन ईयरफोन, क्योंकि वो जो मज़ा होता है, वो जो फील देता है, जो चीज़ें आपको सुनाई देती हैं वो आप एक बड़े स्क्रीन में नहीं देख पाओगे. ऑफ कोर्स द वीडियो इज़ रेंडर्ड फॉर बिग स्क्रीन, इट्स ऑल रेंडर्ड इन 4K, रिकॉर्डेड इन 4K, उसका मज़ा भी अलग है. बट क्योंकि पैरानॉर्मल है तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ ईयरफोन में सुनाई देती हैं या फिर हेडफोन में सुनाई देता है. तो अगर आप एक बार टीवी पे भी देख लो तो एक बार फ़ोन पे भी देख लो हेडफोन लगा के, तो आपको समझ भी आ जाएगा कि क्या हम सुन रहे हैं एंड क्या सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि टीवी में ऑफकोर्स नहीं होता है. आवाज़ें आई, हमको नॉक्स भी आई, कुछ कुछ चीज़ें हो रही थी जो हम बोल रहे थे. बट अरे मुझे तो टच लाइक दे टच्ड मी, या माय फुट, एंड देन मुझे बैक पे फील हुआ. आई फॉर अ सेकंड आई फेल्ट कि शायद तुम लोग हो बुला रहे हो, बट या यू ऑल वर नॉट The place is amazing actually, and that also brings us to our final video, जो कि which is one of our favorite moments. This is the final video of the year of the place, and my favorite moment will be is this moment Oh wow. where मैंने ड्रीम देखा where I was seeing this lady, और ये लेडी जो थी I think the entire investigation का highlight is this dream that you got, and I think this just concludes कि sometimes some places can be so done creepy, spooky, Seriously. dangerous also, के बाद फैमिली तक आ जाए. I got up screaming in the middle of the night, and the worst part was कि मैं जो चिल्ला के उठी और फिर मैं वापस सोई, the dream continued. Continued. I'm like, dude, stop it. Yeah, I know it is very very dark, and of course कुछ खतरे होते हैं जो कि हम जैसे जगहों पे जाते हैं जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, we sometimes cross that line and that line is the safety line kind of, जो कि हम अपने टूर्स में मेंटेन करते हैं बट इन्वेस्टिगेशन में नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम इन्वेस्टिगेशन में भी मेंटेन करने लगें तो हम लोगों को कभी पता ही नहीं चलेगा कि उनका लिमिट क्या है, उनका सेफ लाइन क्या है, वो कौन से हद तक जा सकते हैं. कहीं ना कहीं हम भी रिसर्चर्स हैं एंड हमको वो पता करना बहुत ज़रूरी है कि उनका लिमिट कहाँ है, क्या कर सकते हैं, ताकि जब हमारे क्लाइंट के साथ वैसा कुछ हो, हमारे दोस्तों के साथ वैसा कुछ हो, तो हम बता सकें कि भाई ये मत करना क्योंकि हमने देखा है कि ऐसा कुछ हो सकता है. But please don't do this on your own. Of course, don't do that. हम करते हैं क्योंकि like I said, अगर हमको ही पता नहीं चलेगा कि उनका लिमिट क्या है तो हाउ विल बी हेल्प अदर्स टू टू लेट देम नो कि भाई साहब ये लिमिट आप क्रॉस मत करना. सो दैट्स व्हाई वी पुट आवरसेल्फ इन अ हार्म्स वे एंड वी आर फाइन, वी आर नॉट कंप्लेनिंग. बट कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती है जो काफ़ी हिला देती है हमें, काफ़ी ट्रॉमेटाइज भी कर देती हैं. एंड आई थिंक इन दिस केस I was traumatized. I was totally traumatized. traumatized. It took me, I mean, weeks to come back to normal. Yeah, and I think we would love to go back to that place to investigate more things, find out more things, do more things, experiment more things. Of course, उत्तराखंड में और भी बहुत कुछ जगह हैं जो हमको कवर करना है. But I think this will be my 5th favorite moment. Yeah. You know.
You let us know what is your favorite moment out of the जो भी हमने 20-25 वीडियोस जो हमने डाली हैं. Of course every वीडियो हमने बहुत प्यार से बनाया है, बहुत पेशेंस के साथ हमने एडिटिंग भी की है, म्यूज़िक भी डाला है, सब कुछ किया है हमने. तो अगर आपको अच्छी लगी हो, डू वॉच देम वंस मोर. एंड ऑफ कोर्स मोर थिंग्स आर हैपनिंग. आई थिंक इट इज़ वेरी सेफ टू से कि अभी हमारी वीडियोस हर हफ्ते आएंगी सैटरडे को. एवरी वीक देयर विल बी अ वीडियो एवरी सैटरडे. यू नो, सो एवरी सैटरडे टाइमिंग भले चेंज हो सकता है, लेकिन 6 से 7:30 के बीच में वीडियोस आ जाएंगी. इट कैन बी अ पॉडकास्ट. शिट, मैंने बोल दिया क्या? आएगा अबाउट दैट. इट कैन बी अ वीडियो लाइक दिस. इट कैन बी एन इन्वेस्टिगेशन वीडियो. इट कैन बी अ व्लॉग. आई थिंक मेरा पर्सनल रेजोल्यूशन है 2023 में कि मैं महीने में एटलीस्ट एक व्लॉग बताऊँ, आप लोग को दिखाऊं कि एक महीने में हमारे साथ क्या क्या होता है. सो इट विल बी लाइक अ समरी वीडियो. अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना, कमेंट कर देना. नहीं भी अच्छा लगे तो भी कर लेना, क्योंकि एनीवे एंगेजमेंट होता है तो एल्गोरिथम में तो आना ही है यूट्यूब के. सो आई थिंक दैट्स इट. दीज आर टॉप 5 मोमेंट्स फ्रॉम 2022 जो वीडियोस हमने डाले ऑन आवर चैनल. अगर कोई भी आपका फेवरेट है, प्लीज़ डू कमेंट डाउन. अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, प्लीज़ डू लाइक. And again, thank you so much for all the love to the videos जो आप दे रहे हो. People who are coming from the Beer Bicep channel, people who are coming from our Instagram channel, thank you so very much. You can follow us and our team members from the links that are given below in the description. And also, you can get our merch, theghostencountershop.com. You can, you know, buy them, wear them, gift them, whatever you want to do. बट अगेन उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है. अगर आपको अभी भी वो बात न करिए कि वाई आर वी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ रेड बैकग्राउंड, वो भी आपको आंसर मिल जाएगा बहुत जल्दी. थोड़े टाइम प्रॉब्ली नेक्स्ट वीकेंड जो वीडियो आएगी, वो वीडियो में आपको समझ जाएगा कि हम क्या करना चाह रहे थे एंड क्या हम कर रहे हैं इसके सामने बैठ के. But until then, take care everyone. Have a great year. Happy New Year everyone, first of all. Happy New Year. And yeah, let's make paranormal normal in 2023. Bye bye everyone. Take care. Bye.